people, welcome to Prep Elevate. Today let us discuss about the statement of purpose. तो अभी तक अगर आप हमारे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपने मुझे यूजुअली कोई टॉपिक पढ़ाते हुए देखा होगा या क्वेश्चंस यूजुअली आपने मुझे करवाते हुए देखे होंगे. आज हम लोग कुछ डिफरेंट डिस्कस करें. ठीक है, आज हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिस्कस करें. सो द टाइम व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, CAT results are already out. So a lot of people, who've done really well, they are now going to proceed to the next step of their application, which happens to be the GDPI or VAT PI rounds. And one of the most important elements of any B school application is your statement of purpose. We have tons of videos, right? So this is not obviously the first video that you're going to come across when it comes to an SOP. I try and explain it in my own way, and if it helps, then please consider liking, subscribing, and spreading the word around. So let's discuss about it. ठीक है, तो statement of purpose क्या होता है? Very simple. Name is self-explanatory. It is a statement that explains your purpose to the organization or the college or the B school that you are applying to. Okay. So basically, what happens is, even before you present yourself in front of the panel, there has to be a formal application that explains to the panel why should they consider your candidature amongst all the good ones who are there, right, who are competing for that same seat. So basically, I want to know through your statement of purpose कि आपके गोल्स क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स. व्हाई आर यू इंटरेस्टेड and why out of all the colleges in the world you have picked that specific college. So basically, what can you provide to the college and what can the college provide back? So it's a symbiotic relationship. So I would like to understand कि आपको सच में कॉलेज के बारे में पता है या नहीं है, और अगर पता है तो आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हो. ठीक है, so these are roughly the essential elements of an SOP. So like I mentioned, an SOP is a statement of purpose which explains to the organization why they should consider your candidature. Okay, for this is for your B school purposes, so I'm going to mention candidature throughout. Okay, अभी देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक SOP का टोन क्या होना चाहिए. What is the tone that is expected when it comes to an SOP? The tone of an SOP should be formal and it should be crisp. These two things are very very important. ठीक है, अभी देखो, आप जब SOP लिखते हो ना, there is tons of information that you might want to express. ठीक है, बट कहाँ restrictions आते हैं, constraints क्या है, word limit होगा या character limit होगा या specific questions होंगे, and that is how you are going to elaborate on your answers. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को पिक आउट करो अपने लाइफ का एंड देन उन्हें एक्सप्लेन करो. और टोन हमेशा आपका SOP में फॉर्मल होना चाहिए. यू आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ फॉर्मल टोन एंड अ क्रिस्प टोन. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? सी, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. ठीक है, बट ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है. ठीक है, तो आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए ना, दैट शुड नॉट बी इनफॉर्मल, दैट शुड नॉट हैव those abbreviated forms or the message language that you usually use, your text format. It should be absolutely formal. It should convey the purpose. And when I say crisp मतलब क्या होता है, एक बहुत ही restricted word limit है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करनी है, तो आप रेपिटेटिव नहीं हो सकते. आपको एकदम टू द पॉइंट अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है. ठीक है, एकदम टू द पॉइंट अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है. कुछ चीजें जो आपके पास रेडी होनी चाहिए बिफोर यू सिट टू टाइप आउट योर SOP इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो आपके अचीवमेंट्स क्या हैं. आपके अचीवमेंट्स क्या है. ठीक है, ये अचीवमेंट्स ना, बहुत तरह से ये अचीवमेंट्स हो सकते हैं.
This could be extracurricular activities. This could be, you know, sports related activities if you've been an athlete or a sports person at some point in your career. So achievements extra curriculars हो सकते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकते हैं. दूसरा जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस. ठीक है, इसके बारे में रफली आपको पता होना चाहिए. नाउ you don't really get straightforward questions as to, you know, what your strengths or weaknesses are, but ये part of the answer होते हैं जो आप frame करते हो. ठीक है, और क्या आपको पता होना चाहिए? You should know why are you know, interested in an MBA. Why MBA? ठीक है, ये बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है, बट इट हैपन्स टू बी पार्ट ऑफ द इंटायर, यू नो, SOP दैट यू राइट. सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप MBA क्यों परस्यू करना चाहते हो. और अगर आपके पास ये क्लैरिटी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं. ठीक है, और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं. Short term goals matlab, let's say immediately after you graduate out of your B school. So first, you know, let's say 2 to 5 years. Long term, let's say 5 to 10 years. तो ये अगर आपको पता होगा तब आपको पता है ना कि आप MBA क्यों करना चाहते हो. Alignment, basically I'm trying to understand if your long term and short term goals are in alignment to the degree that you wish to pursue. ठीक है, इसके अलावा you should know why have you picked a particular institute, why this B school. ठीक है, ओके, why this B school. और जैसे कि मैंने कहा ना, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस डायरेक्टली अगर नहीं भी पूछा जाए, ये किस तरह से हाईलाइट होता है. व्हेन आई से व्हाई हैव यू पिक्ड दिस पर्टिकुलर बी स्कूल, तो आपको बताना होता है कि उस बी स्कूल के बारे में यूनिक क्या है. ठीक है, वो क्या कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या ऐसे उनके पास फैसिलिटीज हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है उस बी स्कूल के लिए, क्या ऐसे एक्टिविटीज हैं. अभी एक चीज बहुत ध्यान रखना, ठीक है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं ना जो बहुत ही जेनरिक हैं, जो यूजुअली यूज किए जाते हैं व्हेन यू हैव टू explain, or you know, when you have to highlight the USP of any B school. It could be their peer interaction, it could be their alumni base, it could be the industry connect that they have, it could be, you know, the opportunities that they provide. Okay, तो ये सारी चीजें तो बहुत जेनरिक है. इट कुड रियली अप्लाई टू एनी प्रेस्टिजियस बी स्कूल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर. when you have to explain your candidature for a particular B school, do a little bit of deep digging, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि उनके पास ऐसा क्या है, वो क्या ऐसी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके अलाइनमेंट में है, आपके करियर गोल्स के अलाइनमेंट में है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. लेट्स से you know, you wish to, let's say, build your career in finance, you want to pursue your MBA in finance. Now हो सकता है उस बी स्कूल के पास एक अपना क्लब हो which has done really well in the field of finance, या हो सकता है they give ample opportunities to, you know, let's say you want to, you know, you want to do an MBA in your entrepreneurship, and they have that kind of, you know, seed funding and entrepreneurial activities को वो on campus encourage करते हैं. They host events where they call industry people to judge your projects and stuff. So basically ऐसा क्या है उस बी स्कूल में जो आपको stand out करते हैं. Like out of all the B schools, if given a chance, why would you pick B school A or B or C or D, जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो. So basically इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए. Now शॉर्ट टर्म गोल्स यूजुअली इज immediately after you graduate, आप खुद को क्या करते हुए देखना चाहते हो, where do you see yourself, ठीक है, what positions do you see yourself holding. एक चीज याद रखना, SOP cannot be vague.
ठीक है, इट कैन नॉट जस्ट बी आई वांट टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, नो, what position are you holding, which industry, which domain, which function, how are you creating that impact, वो मुझे पता होना चाहिए. Long term goals, even if it is not very clear, it could be somehow along the lines of attaining a position of seniority in your own domain and then driving innovation and change in the organization or creating a global impact. ठीक है, भी ये सारी चीजों की क्लैरिटी होने के लिए ना आपको थोड़ा सा अपने साथ बैठना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो. सी वन थिंग इज फॉर श्योर, when you are in this entire process, जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, you, most of us, you know, we operate on autopilot. हमें ये नहीं पता होता है बहुत क्लियरली, हम शायद ये पता होता है तो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते कि हम एमबीए क्यों करना चाहते हैं. Maybe this is just the logical step you took, next logical step after you graduated. Maybe you are looking for some career trajectory, some growth जो आपको usual courses से नहीं मिल सकता, and hence an MBA. But when it comes to expressing और articulating कि अच्छा short term goals मेरे ये हैं, long term goals मेरे ये हैं, उसके लिए आपको बहुत क्लैरिटी होने की ज़रूरत है. तो ये जो टाइम है ना, इसको यूटिलाइज करो टू अंडरस्टैंड योर ओन फ्यूचर गोल्स एंड एस्पिरेशंस. जब तक आप अपने एसओपी के साथ कन्विंस नहीं होंगे, आप किसी और को कन्विंस नहीं कर सकते. इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑल अक्रॉस योर फेस दैट यू नो यू हैव जस्ट रिटन समथिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग. डोंट डू दैट, यू विल इजीली बी कॉट. एक और चीज, वाई एमबीए, ये मोटिवेशन ये यही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये क्यों आप करना चाहते हो. देखो, इसके साथ ना एक हिस्ट्री एसोसिएट हो सकती है. लेट्स से यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली एंड यू नो you've seen your business grow, but you've always felt that formal education lacking, and you feel that with a formal degree you'll be able to contribute more. Or let's say like a lot of students that I've interacted with, usually let's say IT का एक example लेते हैं, people who come from the technical background, they mention that you know when we were hired, like campusing जब हमारी हो गई थी हमारी engineering college से, and after 1 or 2 years of working, हमें ये realize हुआ that tech is fine, tech is just one aspect of the entire process, but we want to handle something end to end. ठीक है, हमें पूरा प्रोसेस में मजा आता है. वी वॉन्ट टू टेक अप मोर क्लाइंट फेसिंग रोल्स. वी डोंट वॉन्ट टू जस्ट रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू राइटिंग पेजेस एंड यू नो ऑफ कोड. ठीक है, तो ये आइडिया आपको कहाँ से मिला? जब आप काम कर रहे थे उस डोमेन में, उस इंडस्ट्री में, तो उस प्रोजेक्ट के दौरान आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा, मुझे सिर्फ अपने आप को टेक्निकल फील्ड्स में यू नो आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दैट, आई वांट टू गो बियॉन्ड इट. सो यू शुड हैव अ सॉलिड रीजनिंग फॉर पीपल हु आर जस्ट फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स और हु आर स्टिल इन देयर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज. अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं भी है, डोंट वरी, योर मोटिवेशन कुड कम फ्रॉम एनीथिंग, बट इट शुड साउंड प्रैक्टिकल, it should sound concrete, it should not sound like this is just the next thing that you're trying to do just because you have seen everybody around doing it. थोड़ा convincing होना चाहिए. Your reasons for pursuing an MBA should be convincing, no matter at what stage of your career you are in. ठीक है, तो इसके बारे में सोचो, आप क्यों करना चाहते हो एक MBA. ये टाइम है, अभी आप सोचना स्टार्ट करो, ताकि जब आपका डेडलाइंस आने लगे ना SOP लिखने के लिए, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. अभी देखो, when we were talking about achievements, right? अचीवमेंट, लाइक आई मेंशन, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट जो आपके हैं वो डेफिनेटली काउंट होते हैं. पोजीशंस ऑफ लीडरशिप, अगर आपने कोई यू नो इफ यू बीन पार्ट ऑफ सम क्लब और यू हैव लेड सम क्लब, और यू नो कोई पोजीशन आपने होल्ड किया, लेट्स से कोई इंटर स्कूल इंटर कॉलेज इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपने उसको स्फीयर हेड किया है, वो सारे अचीवमेंट्स में काउंट होते हैं. ठीक है, स्पोर्ट्स, if you've been the captain of hockey team, cricket team, whatever you know team events have been there, or if you have won laurels for your college, या फिर प्रोफेशनली भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है. अब प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हो. सो लेट्स से यू बीन टीम लीड, ठीक है, और आपके अंडर जो प्रोजेक्ट हुआ था वो सक्सेसफुली हुआ था, प्लस आपने लेट्स से यू नो ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपने 20% इंक्रीज किया था. अब एक चीज़ याद रखना, आपको हमेशा ना डेटा के साथ सब्सटैंशिएट करना चाहिए अपने अचीवमेंट्स, अदरवाइज इट सीम्स वेरी जेनरिक. ठीक है, तो सपोज यू हैव लेड अ प्रोजेक्ट एंड इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, कहाँ दिखा? कुछ पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस होंगे ना, कैसे पता चला सक्सेसफुल था? कुछ होंगे ना पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस, उनको फाइंड आउट करो.
सो प्रोफेशनल अचीवमेंट स्पेसिफिकली जब आप क्वांटिफाई कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सटैंशिएट विद डेटा या फिगर्स, 20% ग्रोथ, 20% हाइक, वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है वो चीज़, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अपने बारे में कि अच्छा ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है और ये मुझे पता होनी चाहिए अपने बारे में। अभी देखो, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स तो strengths just cannot be a bunch of adjectives thrown at the panel. You can't say I'm sincere, I'm honest, I'm hardworking, I'm diligent and so on and so forth. ऐसी चीजें पिक करो अपने लिए जिसके बारे में elaborate करने के लिए एग्जाम्पल्स हो. So if you want to claim that okay, I feel that I am very resilient as a person. Resilient कौन होता है? Who can bounce back from any situation. Difficult situation आया, no problem, I'm going to bounce back. कुछ सिचुएशंस हुई होंगी लाइफ में विच हैव टोल्ड यू दैट ओके, इसके वजह से आप खुद को रेजिलिएंट का टैग दे सकते हो. ठीक है, तो आप अपने लिए जो भी एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर यू नो हाउ टू सब्सटैंशिएट. आपको सब्सटैंशिएट करना आना चाहिए. अभी वीकनेस, लाइक आई टोल्ड यू डायरेक्टली, क्वेश्चंस आर नॉट थ्रोन एट यू, लाइक एसओपी में तो आपको इस तरह से नहीं पूछा जाता, बट मे बी पीआई में कोई पूछ सकता है आपसे. तो वीकनेस जब भी आप मेंशन करो, इट्स फाइन, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी ऑल हैव आवर सेट्स ऑफ वीकनेसेस, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू आर डिवॉइड ऑफ वीकनेस, ऐसा नहीं है. एक चीज याद रखना, एज एडल्ट्स वी आर एक्सपेक्टेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी for our weaknesses. So that means, let's say if I claim that my weakness is I am way too meticulous, like बहुत ज़्यादा attention to detail हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है ना कि मेरी चीज़ें ना थोड़ी सी I tend to procrastinate. मे बी ये मेरी वीकनेस है कि मेरा लेवल ऑफ परफेक्शन अचीव करने का जो ड्राइव है उतना हाई है कि मैं फिर बाद में प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाती हूँ कि नहीं, जब तक इस लेवल का परफेक्शन नहीं होगा आई एम नॉट गोइंग टू पुट आउट माई वर्क. ठीक है, मे बी ये है. एज अडल्ट वी आर एक्सपेक्टेड टू नो कि इस पे आपने क्या काम किया है. तो एज एन अडल्ट आई नो कि ये चीज है जो मुझे रोक के रखती है, ये मेरी काइंड ऑफ एक वीकनेस है. तो इमीडिएटली आई एम सपोज टू से दैट एंड करेंटली दिस इज व्हाट आई एम डूइंग टू वर्क ऑन इट. यू आर एक्सपेक्टेड टू टेक responsibility and mention the corrective measures. This is an absolute standout for me. Any candidate who comes and says that okay, this is my weakness and lately I've been doing this, it's an absolute a golden answer for me, because I want to know कि आप weakness है, सब में weakness है. as humans कुछ ना कुछ तो होगा ही ना. You are not perfect, I am not perfect either. I just want to know कि आपने करेक्टिव मेजर्स क्या लिए हैं. जब आपको पता चल गया कि ये मेरा वीकनेस है, तो करेक्टिव मेजर्स क्या है. सो जस्ट बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी फर्म विथ योर आंसर्स, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी. और एक और चीज़, अभी आपके पास AI है, आप उसे जितनी मन उतने पेजेस की एसओपी लिखवा सकते हो वर्ड लिमिट के हिसाब से, बट रिमेंबर देयर इज समथिंग नोन एज अ ह्यूमन टच. ठीक है, आपका एसओपी आपका पर्सनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू नॉट टेक हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट वुड बी फूलिशनेस. रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बट यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप एंड वेयर टू स्टॉप. कहाँ पे यूज ले सकते हो आप AI का? मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जगह है when you want to express but word limit का restriction है, वहाँ पे आप कर सकते हो कि it will help you tweak sentences and still be grammatically correct. ठीक है, आपको कोई वर्ड का रिप्लेसमेंट नहीं पता, मे बी इट विल हेल्प यू टू रेस्ट्रिक्ट इट टू वन वर्ड, वन इम्पैक्टफुल वर्ड. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे मैं हेल्प ले सकता हूँ AI का, बट डोंट गिव मशीन जनरेटेड आंसर्स. इट इज़ वेरी एविडेंट, ट्रस्ट मी, व्हेन यू हैव बीन लाइक रीडिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ SOPs, बहुत ईजी है स्पॉट करना कि अच्छा दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम द कैंडिडेट, इट्स रिटन, ओके, इट्स प्री रिटन, इट डज नॉट हैव दैट ह्यूमन टच. सो इट्स फाइन, यू कैन हैव फ्लॉज हियर एंड देयर, बट यूटिलाइज AI रिस्पॉन्सिबली. ओके, रिस्पॉन्सिबल वे में उसको यूटिलाइज करना सीखना चाहिए. ठीक है, तो एसओपी के लिए यही मेरे बेसिक पॉइंटर्स थे. टोन फॉर्मल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है बिहाइंड दिस MBA, और अगर आप कोई पर्टिकुलर बी स्कूल को चूज कर रहे हो तो उसका रीजंस क्या है, कुछ स्टैंड आउट पॉइंट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी कॉलेज इज गोइंग टू कम अप विद अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ SOP. मतलब हो सकता है कहीं पर ये भी बोल दे आपको कि राइट योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देन यू आर फ्री टू एक्सपेरिमेंट. आप कुछ भी लिखो, कुछ भी, एज एन मेक सेंस, बट
आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर करो। बट कहीं कहीं पे ना ये अलग अलग क्वेश्चंस में एग्जैक्टली बाइफर्केटेड रहता है कि आपको ओके वांट लाइक एक्सप्लेन अबाउट योर अचीवमेंट्स इन दीज मेनी वर्ड्स, एक्सप्लेन अबाउट व्हाई हैव यू पिक्ड दिस पर्टिकुलर बी स्कूल इन सो मेनी वर्ड्स और सो मेनी कैरेक्टर्स। सो ये कुछ पॉइंटर्स अगर आपके पास रेडी रहेंगे ना, आप इसको फिर जो भी कॉलेज के लिए आप एसओपी लिख रहे हो आप उसको ट्वीक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रेजेंट दैट एज योर एसओपी। ठीक है, वर्ड लिमिट, कैरेक्टर लिमिट वो कॉलेज डिफाइन करके आपको देता है, सो अकॉर्डिंगली आपको फिट करना है। सो अभी आपका काम क्या है? आपका काम है इनका आंसर्स ढूंढना, आपका पर्सनलाइज्ड आंसर्स ढूंढना। रॉन्ग राइट नहीं होता, देयर आर नो रॉन्ग और राइट आंसर्स, इट्स जस्ट अबाउट द वे यू प्रेजेंट इट। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी फॉर्मल, क्रिस्प एंड इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। आई शुड अंडरस्टैंड कि आपका एग्जैक्ट पर्पस क्या है बिहाइंड अप्लाइंग। ठीक है, तो जो भी आप एफर्ट कर रहे हो मेक श्योर इट इज इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, so I hope I've clarified a lot of questions which might be there in your heads regarding SOP. If I've missed out on anything or if you need additional clarification, you can put it down in the comments and I'll try and answer your queries there. Okay, thank you so much for tuning in. All the best for all your future rounds and I'll see you in the next one. Bye bye.